Students, today we will take the next chapter, that is the human resource planning, where we will take the need of planning, the planning process, and what is the role of HRP professionals. First of all, human resource is an important corporate asset and the performance of organizations depends upon the way in which it is put to use. HRP को हम एक ऐसी स्ट्रेटजी मानी जा सकती है जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं कि हम राइट नंबर ऑफ़ पीपल को राइट प्लेस, राइट टाइम और राइट थिंग्स के लिए कैसे रिक्रूट और प्लेस करते हैं. ये अचीव ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट गोल है उसको अचीव करने के लिए यूज़फुल रहता है. सेकेंडली, द बेसिक गोल ऑफ HRP इज़ टू प्रिडिक्ट future and based on these prediction implement programs to avoid anticipated problems. Hence we can say that HRP is a continuous process. ये organization की life के जैसे चलता रहता है. Secondly, we can say in the word of Coleman, manpower planning is the process of determining manpower requirements and the means of meeting those requirements in order to carry out the integrated plan of the organization. The basic goal of HRP is to predict the future and to compare the future human resource capabilities and to develop the human resources policies ताकि किसी तरह की potential problems को overcome किया जा सके. For example, implementing training programs to avoid skill deficiencies. Training programs के through skill deficiencies को reduce किया जा सकता है, कम किया जा सकता है. Human resource planning is also known as manpower planning, personnel planning and employment planning. Let us take the objectives of HRP. HRP, human resource planning, is the planning the right man for the right job at right place in right time and developing him into an effective member. It is an important function of every manager. So there is a separate department. हर एक organization में human resource का separate department होता है जिसका ये सारे ऑब्जेक्ट्स अचीव करना बेसिक गोल रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू इंश्योर द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, इम्बैलेंसेस को अवॉइड करें, फोकास्ट करें फ्यूचर स्किल डेवलपमेंट्स को, उनको एक्सेस करें, प्रोवाइड करें कंट्रोल ताकि अवेलेबिलिटी रहे, control the aspect of human resources and formulate the transfer and the promotion policies. Well, we can say that overall human resource planning helps in expanding or contracting the business. It prepare people for future. It creates reserve of people. It cut costs and succession planning के लिए, HR productivity के लिए, to cope up with the changes और ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट के को पूरा करने के लिए हम HRP को यूज़ करते हैं. HRP is the process by which an organization ensures that it has the right number and kind of people at the right place and they are capable of effectively and efficiently uses of their human resources. Next is when we talk about the nature and scope of HRP. अगर हम नेचर की बात करें कि किस तरह से हम अपने वर्कर्स को ट्रीट करते हैं, कैसे वो हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं, सो दो मेन जो नेचर अगर आप बात करेंगे HRP का, वो फोकस करता है टू फोरकास्ट रिक्रूटमेंट नीड्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड एंड टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, देयर एबिलिटी, वट एवर दे possess. और यू कैन से टू आइडेंटिफाई टू इवेलुएट द सोर्स ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़, यानी उनके रिक्रूटमेंट एफर्ट्स को बेस्ट सोर्स में कैसे यूज़ किया जाए, टू चेक ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम्स एंड टू एलिगेंट पर्सनल प्लान्स विद फाइनेंशियल प्लान्स एंड टू मेक द फोरकास्टिंग. इन शॉर्ट, द नेचर इज वी आर ट्रीटिंग द वर्कर्स एज द इन्वेंट्री. It is helping to determine the shortfall or surplus of the resources. It is concerned with the integration of various organization problems and we are designing the training programs for different categories of human resources. So you can say there are certain administrative roles, strategic roles and special roles. Primary attention is given to a combination of 3 categories of activities जहाँ पे हम forecasting system, उनका career development,
एंड उनकी एक्टिविटीज़ को एचआर फंक्शन के साथ मर्ज करके बेसिकली 3 एरियाज को कवर करते हैं. दैट इज़ बेसिकली प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड डेवलपमेंट. Now, what is the need of HRP? Why we use this method? HRP helps in effective recruitment and selection. HRP also facilitates designing of training programs for the employees to develop the required skills in them. HRP provides lead time for procuring personnel, as the lead time given is a time-consuming process. Hence, students, whenever we are communicating the need of the program, when we are explaining the program and when we are saying कि एक फीडबैक स्टैब्लिश किया जाए, एक प्रॉपर मैकेनिज्म वर्क करके करे, तो उसको हम देखते हैं. वो हमारा HRP ब्रांच ह्यूमन रिसोर्स के ब्रांच में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंडर आता है, वेयर वी आर फोरकास्टिंग द एक्सटर्नल ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई एज वेल एज द इंटरनल ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई. सो वेयर वी आर ट्रीटिंग देम एज द रिसोर्सेज एज we are investing, we are doing maximum investment on them. आप एक तरह से बोल सकते हैं कि जब आपने एम्प्लॉयज़ के टर्नओवर को रिड्यूस करना है, आप तभी आपके वर्कर्स का टर्नओवर रिड्यूस कर सकते हैं जब आप फ्यूचर डिमांड को इम्प्लीमेंट करेंगे, टाइम स्पेंड प्लानिंग पीरियड में प्रॉपर्ली रखेंगे. HRP process, there are certain steps in the HRP process. पहले हम डिटरमाइन करते हैं कि क्या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है, हमारी प्लानिंग क्या है, हमें हमारे वर्कर्स कहाँ से रिक्रूट करना है, सिलेक्शन कैसे होगा, हम उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कैसे इन्वेस्ट करेंगे, हमारा बजट कितना है, करंट HR इन्वेंट्री, हमारे पास कितनी अवेलेबिलिटी है हमारे वर्कर्स की, डिमांड फोरकास्टिंग, कितने पर्सनल्स अवेलेबल हैं, कितनों की ज़रूरत है, कितने रिटायर्ड होने वाले हैं, एट्सेट्रा. जॉब रिक्वायरमेंट्स कितना है, जॉब का नेचर क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, एम्प्लॉयमेंट प्लान, हम उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड जो भी इंडोर एंड आउटडोर ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उस पर हम वर्क करते हैं. सो इन शॉर्ट, HRP प्रोसेस कवर्स ऑल दीज फैक्टर्स जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करना पड़ता है. नाउ व्हाट आर द इंटरनल फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द HRP? कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है, उसका करंट और उसका अपने राइवरी कंपनीज के संग कैसा प्रोफाइल है, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ हमारी कंपनीज की क्या है, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करके रखती है वर्कर्स को, जॉब एनालिसिस, जॉब का नेचर क्या है, वर्किंग आवर्स कितनी है, वर्किंग फैसिलिटीज़ कितनी है, प्रोफाइल क्या है, कंपनीज़ का प्रोडक्शन ऑपरेशन पॉलिसी क्या है, एंड ट्रेड यूनियंस का कितना इंटरफेरेंस है, ट्रेड यूनियंस की कितना सिग्निफिकेंस है हमारे किसी भी कंपनी में, ये इंटरनल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. एक्सटर्नल फैक्टर्स, विच फैक्टर्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल, उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आती हैं जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ को अफेक्ट करती हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस कंट्री का क्या है, कंपनी कौन सी स्टेज पर है, इन्वायरमेंट क्या है बिजनेस का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मॉडिफिकेशन कितना हुआ है, टेक्निकल इनोवेशन कितना हुआ है, टेक्नोलॉजिकल लेवल कितना है, एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स हमारे इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, और you can say these all international factors which are affecting the human resource policy directly and as well as indirectly.